Hello, students of class 11th. Continuing from the last lecture, we were discussing the bones of the ribs. So, under axial skeleton, total human skeleton, under total human skeleton, we are now into its, we are studying axial skeleton. And another one is appendicular skeleton. ओके, तो एक्सियल स्केलेटन में हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? स्कल हो गया, स्कल इज ओवर, वर्टिब्रल कॉलम इज आल्सो ओवर, वी आर नाउ इनटू रिब्स. ओके, we will study now the ribs. Okay, taking the help from this picture. You can observe here the ribs. Okay, can you see here? You can observe here 12 pairs of ribs. Okay, can you see? And in this, you can observe that this is little brown and this is little bluish in color. Can you see? Can you observe the difference? So this portion is, which is little blue, whitish bluish in color. This is showing that here there is a presence of hyaline cartilage. ये रिब्स के एंड पर इधर भी और इधर भी हाइलाइन कार्टिलेज है और उसकी मदद से यह स्टर्नम से अटैच्ड है. ओके, अब देखिए 1 से लेकर के 12 तक इसमें रिब्स है. ओके, so in this what you are seeing, number 1, 12 pairs of ribs. Okay, और हर रिब जो है, each rib is a flat and thin flat and thin bone, and it which is connected dorsally in bone. The next point, it is connected dorsally to the vertebral column. And ventrally to the sternum. और क्या बता सकते हो इसके बारे में? It has two, हाँ देखिए आपको बुक में भी लिखा है, it has two articulation
surfaces. One in dorsal side, where it is articulating with the vertebrae, and another upper sternum side. On two articulation surfaces on its dorsal end. On its dorsal end. तो इसके डॉर्सल एंड में जहां वर्टिब्री से आर्टिकुलेट किया है, that you have to look into, which is not clear in this picture. It is not seen here. Okay, बस इतना हम आप गूगल में देख सकते हो, हम दिखा देंगे आपको, या आप देख सकते हो. ओके, 5 next thing about this is, first 7 pairs, that is 1 to 7 are true ribs. Why? Because dorsally they are attached to the thoracic. ओके, ये लिख लोगे आप, साइड कर देना, बुक में लिखा हुआ है आपका, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Dorsally, they are attached to thoracic vertebrae, and ventrally, they are connected to the sternum. True ribs का definition हो गया है. Next. With the help of hyaline cartilage भी बोलोगे. देखो hyaline cartilage दिख रहा है आपको यहाँ. 8, 9 and 10 pairs of ribs. This one 8, 9 and 10. Can see 8, 9 and 10. आठ, 9 और 10. ये तीनों रिब जो है वो 7 वाला जो रिब है इसको ज्वाइन कर रहा है बिफोर ज्वाइनिंग द स्टर्नम. इट इज नॉट ज्वाइनिंग डायरेक्टली टू द स्टर्नम. 8, 9 and 10 pairs of ribs do not articulate directly. Instead, they are attached with the sternum, directly with the sternum, but they join the 7th rib
with the help of hyaline cartilage. True ribs we hyaline cartilage. This also. And they are called as vertebropondral. So these ribs are called as vertebrocondral. Chondral है ना, chondral. Chondral ribs या false ribs. तो लास्ट के दो पेयर हैं 11th and 12th. These two pairs, last two pairs, that is 11th and 12th, of ribs are not connected ventrally, not connected. They are connected dorsally, but not connected ventrally. You can see here, 11वां और 12वां, देखिए वेंट्रल डोर्सल कनेक्शन है इसका, बट वेंट्रल कनेक्शन इज मिसिंग. यहाँ पे देखो एक लटका हुआ है इधर. ओके, can you see a glenoid cavity here? ग्लेनोइड कैविटी में ये आपका ह्यूमरस ज्वाइंट, ठीक है ना. हाथ की जो हड्डी है ह्यूमरस का, इसका जो एंड है बल्ब जैसा, वो इसमें घुसा हुआ है. ग्लेनोइड कैविटी. ग्लेनोइड कैविटी बनता है क्लेविकल और स्कैपुला के जोड़. ये स्कैपुला का एंड जो है वहां पर एक रीड एक्रोमियन कहते हैं उसे. एक्रोमियन, क्लेविकल और एक्रोमियन स्कैपुला का ही पार्ट. आइए इस पर फिगर में था तो इसलिए तो इस तरह होता है. तो लास्ट टू पेयर्स 11 and 12, these are not connected ventrally. You have seen this and are therefore called as क्या? Floating ribs. Okay. So in this picture, you are seeing the ribs cage. And the ribs cage is thoracic vertebrae, ribs and sternum. These together form the rib cage that is seen in this picture. You can see. Okay, understood? Now we will enter the appendicular skeleton. तो अभी तक एक्सियल स्केलेटन हो चुके हैं कंप्लीट. एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन्स हैं बोलो? 80 बोन है. स्कल रीजन में 29 पढ़ चुके हैं. वर्टिब्रल कॉलम में 26 पढ़ लिए. इसमें 24 है और एक स्टर्नम. 80 हो गया. तो एक्सियल स्केलेटन
over now. Okay. Now we will see appendicular skeleton. And in that, how many bones are there? 126. इसका breakup है. Each limb has 30 bones. So 4 limbs, 30 into 4, 120 bones. और 4 बोन है आपके पेक्टोरल गर्डल में और पेल्विक गर्डल में 2 है. तो इस प्रकार से ये भी 126 हो जाएगा और 126 और 80 206 हो जाएंगे. तो अब हम एक्सियल स्केलेटन देख चुके हैं. अपेंडिकुलर स्केलेटन में वी विल सी ऑल दीज बोन्स नाउ. ओके, ठीक है. Each head, students, we will see the appendicular skeleton now. In this, we will study 60 bones from 4 limbs, each having 30. We have 4 limbs. Then we will see 60 bones from hind limbs. From की जगह ऑफ ठीक रहेगा. Of hind limbs. 2 पैर and 4 bones of pectoral girdle and 2 bones from pelvic border girdle. So this makes 126. One by one we will see. First we will see 4 limbs. Okay. So see, you already know some of the popular bones from the 4 limbs. Okay. The largest bone in the 4 limb is called humerus. Four limb. And humerus is attached to, in the limb, humerus is attached to which bone? Radius and ulna. So we will include one picture here. Very simple. You can see humerus. This long bone is called as humerus. 1 in number. The radius and ulna. Okay. Here, 1 radius, 1 ulna. You can see here carpals in the wrist region. 8 bones of the carpals. Metacarpals, 5 metacarpals and 14 phalanges. If you observe it, see it carefully, you will
be able to count all those numbers. Okay? देखिए 8 कार्पल नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पर छोटा 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 बोन्स है। 5 मेटाकार्पल्स, 1 2 3 4 5 मेटाकार्पल्स, 14 phalanges, 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14। Okay, so our forelimb is consisting of humerus, one radius bone, one ulna bone, one बोलते जाओ कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5 and phalanges, phalanges 14, which comes 30 in total. You have seen this is humerus, radius is this red one, ulna is this blue one. Okay, अगर आप हाथ ऐसे करोगे तो रेडियस जो है वो अंगूठा साइड, ऐसे हाथ कर लिए ना तो रेडियस इज दिस साइड, अल्लाह इज दिस साइड। अल्लाह जो है आपको बॉडी के इधर वाला तरफ अल्लाह। अल्लाह carpals, you see here the carpals are metacarpals, here and phalanges. Okay. तो forelimb is over, समझ गए इस आप। अब आते हैं हाइंड लिम्ब में। हाइंड लिम्ब में भी 30 बोन्स हैं। hind limbs, each hind limb is having 30 bones. I will include one good picture of hind limb bones. It shows no, this is not a good picture because the writings are even not clear to me even. Okay, not clearly visible to me. Okay, I'll include another picture. Okay, students, in this picture, you can see the bones of the hind limb. Okay, what you are seeing here is hind limb के bones में पहला बोन जो बॉडी का सबसे लंबा बोन है, तो hind limb is consisting of thigh bone, which is called as femur. So there is one femur, tibia, one tibia, tibia and fibula काउंटर है किसका, रेडियस एंड अल्ना का, fibula
बोलते जाओ। Tarsals, how many? Metatarsals 5, phalanges, बार बार इस पे। और कुछ छूट रहा है? पटेला, पटेला, so this becomes 30. Okay, you see here, this is femur, tibia and fibula, 3 बोन हो गया। पटेला 4, tarsal bones, you can see here, you can count 7 tarsal bones. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। ये हो गया बड़ा वाला सबसे पहला। एक, इधर बगल में छोटा सा है 2, उससे नीचे एक और छोटा है 3, नहीं नहीं, ये 1, 2, ये आप मैं इसका डिटेल पिक्चर भी खोज के दिखा देता हूँ आपको, जब इतना हो ही रहा है। इसका रिस्ट का और एंकल का, यू कैन सी रिस्ट एंड एंकल्स, रिस्ट, रिस्ट बोन्स। Okay, can you see in this picture? 4 lamp, 4 arm, 4 limbs से belong
कर जो कर रहा है ये रिस्ट के बोन्स। इसमें कितने हैं कार्पल? 8। 8 कार्पल आपको क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। इसमें 2 रो में है ये एक तरह से। सी 1 2 3 4 5 6 7 and 8। There are 8 carpals। देखिए इसका नाम भी लिखा हुआ है, ट्रेपीजॉइड, ट्रेपीजियम, स्केफेजॉइड। दिस वन इज लूनेट, दिस वन इज ट्राइक्वार्टम, ट्राइक्वार्टम, दिस वन इज पीसीफॉर्म, हेमेट एंड कैपिटेट। 1 2 3 4 5 6 7 8। These are the phalanges, metacarpals. 1 2 3 4 5, 5 metacarpals। phalanges ये हो गए फिंगर वाले बोन्स, 3 3 3 3 और 2। एंकल में आप देख सकते हो टार्सल्स और मेटाटार्सल्स। हाउ मेनी टार्सल्स? वी हैव 7। ओके, हमारे पास 7 टार्सल हैं। अब आप इसको देखिए, 1 2 4। दिस इज द 5th वन। मार्क करते जाते हैं। मीडियल क्यूनिफॉर्म 1, ये हो गया मीडियल क्यूनिफॉर्म। दिस वन इज 1। इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, दिस इज सेकेंड। and this one is lateral cuneiform, third, and the cuboid, fourth, okay, 4 हो गया। 5वां नेविकुलर, ये 5 नेविकुलर। और छठा टैलस, और 7वां कैलकेनियस। ये जो दिख रहा है बीच में, ये यही बोन का भाग है, अलग बोन नहीं है। आप कहोगे 8 हो जाएगा, यदि इसका नामांकन नहीं किया, इसको काउंट नहीं किया आपने ना, 3 दिख रहा है ना, 1 2 3। लेकिन ये तो ये इसी बोन का हिस्सा है, टैलस का ही। बड़ा बोन है ये टैलस। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस साइड टैलस। और ये वाला बोन हो गया आपका टो साइड। ये टो साइड में यहाँ पर बोन है, ये बड़ा वाला, दिस वन। क्या नाम है? कैलकेनियस। ये कैलकेनियस यहाँ पर। टैलस जो है इस साइड यहाँ, देख लिया। सिर्फ थाईलैंड और मेटाटार्सल्स 5, 1 2 3 4 5। और ये हो गए फैलेंजेस। ओके, 1 2 3। ये हो गया टो वाला, 2 फैलेंज। और बाकी सब फिंगर्स के, हर फिंगर में 3 फैलेंजेस। ठीक है ना? सबसे दूर वाला जो है डिस्टल फैलेंज, मिडिल फैलेंज एंड प्रॉक्सिमल फैलेंज। प्रॉक्सिमल तो टो में हो गया 2 ही, एक डिस्टल phalanx and proximal phalanx, and the rest finger distal, middle and proximal. So here this
limbs are over. ठीक है। तो अभी तक कितना लिम्ब बोन हो गया कवर, दोनों लिम्ब में। 4 आर 4 लिम्ब में 60 बोन्स देख लिए, और हाइंड लिम्ब में एक में 30 है, तो 30 दूनी 60 हो गया। So we have seen 120 bones out of 126. 6 bones are remaining, and those belong to pelvic and pectoral girdle. Shall we move ahead? It is clear so far? Any question? Now coming to third part, pectoral girdle. Bones of pectoral girdles नहीं, एक ही है girdle, एक। And how many bones are there in this? 4 bones belong to pectoral girdle. You see in this picture, can you see this picture clearly? Is it visible? What you are seeing here? एक ह्यूमरस बोन दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ ना, ये ह्यूमरस बोन लेबलिंग है। ह्यूमरस बोन के अलग अलग पार्ट को लेकर you will see epiphyseal line here. epiphyseal line क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? तो हर बोन, जो लंबे बोन्स हैं, इन बोन्स के एंड पर epiphysis होता है, क्योंकि बोन की लंबाई बढ़ रही है। तो कहाँ से बढ़ती है बोन की लंबाई? तो आज बच्चा बड़ा हो रहा है, लंबाई बढ़ रही, बोन की लंबाई भी बढ़ती है ना, हाथ भी बड़ा होता है बच्चे का। तो वो रीजन यही epiphysis में ग्रोथ होता है। लेटर ऑन epiphysis कार्टिलेजिनस, तो यही एंड से हड्डी बढ़ता है। सवाल होता है कि बीच से बढ़ता है कि एंड से बढ़ता है, कहाँ से लंबा हो रहा है, पूरा खिंचा रहा है, एंड से बढ़ रहा है। epiphysis कार्टिलेजिनस होता है यहीं पर, यह कार्टिलेज और बढ़ते रहता है, और पीछे का कार्टिलेजिनस मटेरियल बोन में तब्दील होते जाता है, वही कह रहा है epiphyseal लाइन। और ग्रोइंग एज के बाद epiphysis फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बोन की लंबाई नहीं बढ़ पाती, बढ़ती है। Even if you give the growth hormone, the height or the length of the bone will not increase because the epiphysis has been fused. ऐसे bones, long bones जो epiphysis होता है। 18 साल, अब तुम लोग का हो जाएगा 2 साल में डिफ्यूज। जितना दूध पीना है पी लो, है ना, बाद में कोई काम नहीं आएगा, वो दूध कितना भी पियोगे कोई काम नहीं आएगा ज्यादा, अभी काम आएगा epiphysis फ्यूज होने से पहले। लैटरल इपिकोंडाइल ये हो गया, ये सब इसके
स्ट्रक्चर है ह्यूमरस के पार्ट, ट्रोक्लिया, कैपिटुलम. Okay. Now coming to this thing, Control Z. Look, कहाँ तक जाएगा? 4 bones are there. Okay. So this is, आप ऑब्जर्व कीजिए ये 4 बोन कहाँ? This is the, this is one half. This is half of the pectoral girdle. Okay. ये तो आर्म हो गया, पेक्टोरल गर्डल. दिस इज पेक्टोरल गर्डल. लिम्ब का जो बोन है वो एसोसिएटेड है, ओके, टू द अदर बोन्स. So these are those other bones. एक तो लिम्ब का बोन लिम्ब के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है ना. तो जो बॉडी के साथ जो बोन अटैच्ड है लिम्ब का, वो उसका नाम है ह्यूमरस. ये अटैच है. ये तो फाइलेंजेज अटैच टू मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स अटैच टू कार्पल्स, ऐसे है. यहाँ से तो फिर कोई अटैचमेंट नहीं है. तो हियर द बोन which is articulating with the body is humerus, the limb bone. So this humerus is articulating with these bones, and these bones are forming pectoral girdle. See, there are 2 bones each side. That's why 4 bones. One bone, one is clavicle. दिख रहा है आपको? This one, clavicle. इसे हम कॉलर बोन कहते हैं. And the another one is scapula, इसे शोल्डर ब्लेड कहते हैं. यहाँ है पीठ जिसको धमक्का मारा जाता है ना, एक धमक्का रहता है, स्कैपुला. तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है धमक्का से. और नहीं तो धमक्का कहाँ लगता, कहाँ बजरता? ये नहीं रहता तो कहाँ लगता? छू अंदर लंग में लग जाता है ना. ये बाहर में है, रिब केज है, रिब केज के अंदर लंग. हाँ, यहाँ नहीं लगता तो रिब केज पर डायरेक्ट लगता है, क्लैविकल. The second one is scapula. This is called as shoulder blade. तो 2 बोन है, एक एक की संख्या में, और दोनों साइड, बॉडी के दोनों लैटरल साइड. तो दिस मेक्स 4 in total bones. Here you are seeing that pelvic girdle bones, which are clavicle and scapula, they are helping in the articulation of upper and uh, in the upper limbs, respectively, with upper limbs with axial skeleton. So
each girdle हाँ अच्छा, ये दोनों मिक्स कर दिया तभी ठीक। आप देखेंगे कि हर आधा भाग जो पेक्टोरल गर्डल का है वह क्लेविकल और स्कैपुला से बना हुआ है। क्या लिखा है आपकी किताब में? स्कैपुला इज ए लार्ज ट्रायंगुलर बोन, ठीक है, लार्ज ट्रायंगुलर बोन situated in dorsal part of the thorax, part of thorax, between second and the seventh ribs, between second and seventh ribs. तो इन पिक्चर के आधार पर आप सोच सकते हैं, पहला रिब के पीछे में, इसके डोर्सल साइड पीछे में पहला रिब को छोड़कर दूसरा से लेकर के सातवां तक ये ट्रायंगुलर बोन है। टिल सेवंथ रिब क्या क्या बोले? हाँ, आर्म का क्या होता है? आर्म कैसे स्केपुलेट करेगा, आर्टिकुलेट करेगा? आप ऐसे जो घुमाते हो हाथ, ऐसे 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 करते हो, ये भी ना इसके ऊपर ग्लाइड करता है। आपसे ज्यादा दिमाग है ना भगवान जी के पास। हम्म? सब कुछ सोच समझ के फिट है ना बॉडी। स्केपुला का भी रोल, इट इज प्रोटेक्टिंग as well as it is providing, it is making this cavity, glenoid cavity, यहाँ पर ये जो कैविटी है जिसमें ह्यूमरस आर्टिकुलेट कर रहा है, हाँ देखो लिखा हुआ ग्लिनोइड कैविटी, दिस कैविटी, and this glenoid cavity is formed by clavicle and scapula both. Okay. ये स्कैपुला के पास dorsal flat triangular body of scapula has a slightly elevated ridge called the spine, which projects as a flat expanded process called acromion. This पूरा लाइन को समझो। This is dorsal, flat, okay, and triangular. It has slightly elevated ridge. इसको थ्री डायमेंशनली देखना होगा अलग से स्कैपुला बोन को, तब आप ये चीज को समझोगे। यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। स्लाइटली एलिवेटेड रिज, यहाँ पर एक रिज है, रिज कहते हैं उभार को, ठीक है। इस हड्डी पर एक उभार है और वह उठा हुआ है और उसे हम स्पाइन कहते हैं, इसके पीछे में है। और स्पाइन प्रोजेक्ट होता है एज ए फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस, पूरा है इधर की तरफ और इस तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है एज ए फ्लैट एंड एक्सपेंडेड प्रोसेस, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्रोमियन। इस एक्रोमियन का रोल है इन फॉर्मिंग दिस ग्लेनोइड कैविटी। ओके, एक्रोमियन स्कैपुला पर है हुआ अटैच और एक्रोमियन फॉर्म हुआ जो कि ग्लेनोइड कैविटी का पार्ट है। ओके, मोर ओवर with this acromion you can see
क्लेविकल बोन इज आर्टिकुलेटिंग। ये क्लेविकल बोन, कॉलर बोन, यहाँ पर इसी एक्रोमियन के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, एक्रोमियन के ऊपर। क्लेविकल बोन हमारे शोल्डर जॉइंट में नहीं है पार्टिसिपेट किया हुआ, शोल्डर जॉइंट में पार्टिसिपेट किया हुआ है एक्रोमियन, और ह्यूमरस। क्लेविकल बोन इज फॉर्मिंग, इज आर्टिकुलेटिंग विथ द एक्रोमियन। क्या दिख रहा है एक्रोमियन के ऊपर? क्लेविकल बोन की रेस्टिंग, यहाँ एंड हो गया, खत्म हो गया क्लेविकल बोन। So clavicle articulates with this acromion. ऐसा पॉइंट लिखते जाना। The clavicle articulates with this. Okay. Below the acromion, there is a depression. See, acromion के नीचे एक डिप्रेशन है। अगर इस हड्डी को हम हटा दें, ह्यूमरस को हटा के सोचो, तो यहाँ एक डिप्रेशन है, and that depression is called as glenoid cavity. And with this, in this cavity, head of the humerus, this is the head of the humerus, it is articulating and forming the shoulder joint. Okay, so this is about the scapula. Scapula में क्या याद रखने योग्य बात है आपके लिए? ट्रायंगुलर है, फ्लैट है, डॉर्सल, यह बोन। ठीक है, यह बोन दूसरा रिब से लेके सातवां रिब तक फैला हुआ है, यानी सारे ट्रू रिब्स को कवर किए हुए, पहला फर्स्ट को छोड़। प्लस there is one important structure in scapula called as acromion. It is an elevated ridge which extends, and it is present on the clavicle. Acromion. Okay, acromion से संबंधित दो बात याद रखोगे। Acromion is articulating with the collarbone on one side, and on the other side, below the acromion, there is a depression. The name of that depression is glenoid cavity, and through this depression, the humerus head is articulating. Okay, because this depression, the glenoid cavity, is forming the shoulder joint. इतना बात समझी? तो दिस इज अबाउट क्लेविकल। क्यों क्लेविकल इंपॉर्टेंट है अब समझ गए? जॉइंट में इन्वॉल्व है। कॉलर बोन आर्टिकुलेट कर रहा है इस पर, ये अगर चला जाएगा तो ये पूरा चला जाएगा ना, बिखर जाएगा। ये होल्ड किए हुए स्कैपुला, हाथ को भी और एक्सियल स्केलेटन से कॉलर बोन के थ्रू पकड़े हुए। नेक्स्ट, क्लेविकल बोन। क्लेविकल भी बहुत इंपॉर्टेंट बोन है, सब चीज इंपॉर्टेंट है। इट इज ए लॉन्ग स्लेंडर, जबकि स्कैपुला क्या था? लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट। यह लॉन्ग है और स्लेंडर है, विथ टू कर्वेचर्स, एंड दिस बोन इज कॉल्ड टू कर्वेचर। एक कर्वेचर इस साइड और एक कर्वेचर इस साइड, दोनों साइड आर्टिकुलेट किए हुए हैं। So long and slender bone with two curvatures, and this bone is called as collarbone. Okay, बस इतना, इससे ज्यादा आपकी बुक में नहीं दिया है कॉलर बोन के बारे में। So here this pectoral girdle is over,
Now we will see pelvic girdle. How many bones? Two bones. Is it visible? Yes. See, pelvic girdle is basically consisting of two bones. और ये दोनों बोन एक ही बोन, कोई दोनों अलग अलग बोन नहीं, एक ही बोन है। इसीलिए दे कंसिस्ट ऑफ, पिक्चर देखने में आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजी. So they have two coxal bones. Pelvic girdle is composed of two coxal bones. यह कॉक्सल बोन खुद में भी तीन बोन के फ्यूजन से बना है. ठीक है, तीन बोन के ये फ्यूजन से बना है. Ischium, ilium and pubis. It is because of, in other animals you will find three bones, these bones. Ilium, pubis and ischium. तो फ्यूजन हो गया तो एक ही बोन बचा है, रहा अब ये. Ilium, ischium and pubis. At the point of fusion of the above bones is a cavity called acetabulum, to which thigh bone is articulating. जहां पर ये तीनों फ्यूज करते हैं, फ्यूजन पॉइंट जो है लिखा हुआ है, एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द एबव बोन्स, जहां पर तीनों बोन फ्यूज किए उस पॉइंट पर देयर इज ए कैविटी. That cavity is called as acetabulum. Now see, look at this picture. You are observing many transverse processes in vertebrae. Here, दिख रहा है thoracic region में यही transverse process rib cage, ribs में continue हो गया था. See, this is the sacrum. ये sacrum दिख रहा है आपको, बड़ा एक वर्टिब्री है, चार वर्टिब्री के फ्यूज होने से बना है ये सैक्रम. याद करो, 5 से, अच्छा 5.
5 से बना था। तो ये वर्टिब्रल कॉलम पढ़े थे आप, उसमें था ना, सर्वाइकल, thoracic, लंबर, उसके बाद सैक्रम। ये हुआ सैक्रम वाला एक वर्टिब्री है। और इसके बाद एक कॉकिक्स, ये दिख रहा है आपको कॉकिक्स, ये भी फ्यूजन से बना है। ओके, सो दिस होल इज दिस, यहां से लेके यहां तक ये पूरा सैक्रम, दिस इज इलियम। ये है इलियक, देखिए इलियक क्रेस्ट, ये इलियम का उभार है, बॉर्डर है। और इसके ऊपर एक गोल सी मोटाई होती है, उसे कहते हैं इलियक, ट्यूबरकल ऑफ इलियक, इलियक क्रेस्ट। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, दो गो नोक उठा हुआ है इस पर, कमर का हड्डी में, इलियम में। ये जो नोक उठी हुई है इसे एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन, ये भी एक नोक उठा हुआ है, ये एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। इलियो प्यूबिक इमिनेंस, यानी यहां पर हो गया प्यूबिस और इलियक, इलियक इलियम खत्म हुआ और प्यूबिस स्टार्ट हुआ, ये फ्यूजन पॉइंट है यहाँ पर। पेक्टिनियल लाइन, आर्टिकुलर कार्टिलेज, तो कार्टिलेज इज ओवर द फीमर, फीमर है, उस फीमर के ऊपर कार्टिलेज है। एंड दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज एसिटाबुलम, दिस कैविटी, इस कैविटी में फीमर अपने कार्टिलेज के साथ घुसा हुआ है। सी ischium, this is the ischium, इलियम, यहाँ प्यूबिस है, एंड दिस वन इज ischium, फ्यूज है, इलियम प्यूबिस ischium, तीनों फ्यूज है। और जहां पर फ्यूज कर रहा है उसी के बगल में एसिटाबुलम। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एबडक्टर फोरामन, दो एबडक्टर फोरामेन, एंड प्यूबिक आर्क है और उसके बीच में कार्टिलेज है, नहीं तो ये घर्षण हो करके रफ हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कार्टिलेज है। तो व्हाट यू आर सीइंग हियर, what you are seeing in this picture, you are you are seeing coxal bones, so this is coxal bone, one coxal bone, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये कान जैसा जो बोन दिख रहा है ये कॉक्सल बोन हो गया। यस कि नो, ischium, इलियम और प्यूबिस के फ्यूजन से बना है ये कॉक्सल बोन। एक कॉक्सल बोन इधर और दूसरा कॉक्सल बोन उसी तरह से इधर, है ना, 1 and 2। ये तो वर्टिब्री था, कॉकिक्स जो है 27वां वर्टिब्री था, ये 27वां हड्डी, हड्डी पढ़ रहे थे वर्टिब्रल कॉलम का, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, सबका गिनती हो चुका है। ये 26वां था, नहीं सॉरी 27वां बोल, ये 26वां था, ये 25वां था,
और ये हाइंड लिम्ब का पहला बोन था, फेमर। ठीक है, तो ये 24, 23, 22 हो गया ये सब। Have you understood this? So here you are seeing that there are two halves of pelvic girdle. In each half there is one coxal bone. ठीक है, और ये दोनों हाफ जो है पेल्विक गर्डल के, ये वेंट्रली मीट होते हैं। आगे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ ये वेंट्रली, वेंट्रल हुआ दिस साइड, ये मीट हो रहे हैं और बना रहे हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज। यह हो गया प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक आर्क, प्यूबिक आर्क के बीच में ये जो जगह है, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया प्यूबिक सिम्फाइसिस, और इसी में कार्टिलेज है। Okay, so this part is over now. We have seen all the bones, all 206 bones which constitutes our body. Okay, student? Quickly we will cover the joints now. The types of joints which are present in your body. Okay, students, so we will study now the joints. क्योंकि ये बोन्स एक दूसरे से आर्टिकुलेट कर रहे हैं, अटैच्ड हैं इन जॉइंट्स के माध्यम से. So we will see the type of joints with their examples. See in this picture, what are joints? If joints are not present, how the bones will articulate? So joints are essential for all types of movements. Okay. So locomotory motions are not possible without joints. So joints are basically the points of contact between the bones or between the bones and cartilage. The force generated by the muscles is carrying out the movement in the joints. Okay. So it is acting as a fulcrum. If you want to move anything, ये हो गया फलक्रम. ऐसा खेल देखे हो गए, और इस पर दो बच्चे बैठ जाते हैं, इधर और इधर, तो बीच में ये हो गया, दिस इज फलक्रम. The movability of these joints vary depending on different factors. So different types of joints are present in our body, and those joints have different degree of freedom for the movement. Different joints different तरीका से अलाउ करेंगे. कोई ज्वाइंट नहीं भी अलाउ करेगा मूवमेंट को, कोई ज्वाइंट ज्यादा मूवमेंट अलाउ करेंगे, कोई ज्वाइंट कम मूवमेंट अलाउ करेंगे.
So joints are classified according to the structure mainly into three forms. ये आपके बुक में मेंशन्ड है. नाम है फाइब्रस, फाइब्रस ज्वाइंट. अरे दूसरा कार्टिलेजिनस. थर्ड साइनोवियल. ठीक. फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल. देखिए, मूवमेंट में, मूवमेंट अलाउ करने में फाइब्रस जो है वो जीरो है, नो मूवमेंट, पूरा फर्म ज्वाइंट है. कार्टिलेजिनस ज्वाइंट will allow some degree of movement, and synovial joints are those joints which allow a greater degree of movement. Therefore, these joints are not allowing fibrous joints. They do not allow any movement. This type of joint you find in skull. Example, joints between joints shown by flat cranial bones or skull bones. And here what happens? The bones fuse with each other, end to end, with the help of fibrous connective tissue. The bone itself is a fibrous connective tissue. तो वहां पर और ज्यादा फाइबर्स बढ़ जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. So that's why these joints are called as fibrous joint. Continuous है, दो बोन है लेकिन वो ऐसे ज्वाइंट हो गए कि कंटिन्यूअस बन गए. So skull bones fuse, they fuse end to end with the help of dense fibers. And this results in creation of sutures. जैसे कुछ चीज सिला हुआ है, फुटबॉल देखियो, सिला हुआ है पूरा ऐसे. या कोई मोटा जींस देखियो, वो सिला हुआ है, बाहर सिलाई दिखती है उसकी, जैसे सूचर कहें. कितना वो टफ है. वो नींद आते रहता है क्या हमेशा? 4-5 बार देख चुके हैं ऐसे. ऐसे करते रहते हो तुम पूरा क्लास में. ऐसे में हम देख रहे हैं. तुम आते हो तो घर से आंख वाँख धो के आया करो. 2-3 बार देखे अभी ऐसे. ऐसे की
कोई गुनाह नहीं है ऐसे करना, बट इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा लॉस हो रहा है और मेरा भी एनर्जी डाउन होता है। क्लास में स्टूडेंट प्रफुल्लित दिखता है, रिसीव हम एंटीना दे रहे हैं, वो रिसीव कर रहा है, तो हम भी अच्छा से पढ़ाएंगे। हम भी थोड़ा सा इंटरेस्टलेस हो जाते हैं बोलते बोलते बीच बीच ऐसे रुकते हो, ठीक? ध्यान रखो। So this creates an immovable joint. This is fibrous. It is present here. Fibrous joints present in the skull. Cartilaginous. Cartilaginous are those joints which are formed by the joining together of the cartilages. This type of joint you will see, you have seen in the ribs. Cartilage. बता सकते हो यहाँ कार्टिलेज था, कार्टिलेज के थ्रू रिब से ज्वाइन। और वर्टिब्री में जो ज्वाइंट्स है डोर्सल साइड, वर्टिब्री भी अटैच है एक दूसरे से कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स के द्वारा। तो क्या लिखोगे, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स। हियर द बोन्स इन कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स, बोन्स involved are joined together with the help of cartilage. हो गया सिंपल, with the help of cartilage, and this allows a limited movement. Cartilage, the help of cartilage, and this allows limited movement. Example is adjacent vertebrae in the vertebral column. Adjacent vertebrae are attached through this joint, cartilaginous joints. रिब्स और स्टर्नम के बीच में है ना, रिब्स और स्टर्नम के ज्वाइंट के बीच में यहाँ कार्टिलेज था। और कुछ सोच सकते हो? नोच के पास भी है, यस। दैट कैन बी सेड ए ज्वाइंट, यस। ओके, इस पिक्चर में आपको साइनोवियल ज्वाइंट दिखाया गया है। सिर्फ यहाँ जो पिक्चर है, साइनोवियल ज्वाइंट्स, ये बहुत कमाल के ज्वाइंट्स हैं जिनसे हम लोकोमोशन कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, वॉलंटरी मूवमेंट्स कर रहे हैं साइनोवियल ज्वाइंट्स के थ्रू। इनका नाम साइनोवियल ज्वाइंट इसलिए पड़ा कि क्योंकि एक साइनोवियल कैविटी होती है। These joints are characterized by the presence of synovial cavity, okay, and this cavity is filled with a lubricating substance material. वो क्या है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड पढ़ाए होंगे तो बायोमोलिक्यूल्स में शायद बताए होंगे, हेटेरोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, समझ लो। होमोपॉलीसेकेराइड नहीं, हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, उसका मोनोमर एक से ज्यादा टाइप का मोनोमर है। वो होमो में एक ही रहता है, जैसे स्टार्च और सेलुलोज।
ठीक है, इसमें मोनोमेरिक यूनिट एक से ज्यादा है, और वह लुब्रिकेशन, ग्रीस, चिकनाई का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, कितना अच्छा लुब्रिकेशन है ये, पूरा लाइफ आपके काम आता है हर जॉइंट पर लुब्रिकेशन। अदरवाइज क्या होता है, फ्रिक्शन होकर के बोन जो है वहां रफ हो जाता है। साइनोवियल फ्लूइड किसी का अगर कम हो जाता है, क्या करता है, हाँ तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, तो बुजुर्गों में साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, तो उनको उस जॉइंट का दर्द, घुटना का दर्द, ये सब होने लगता है। घुटना में खासकर होता है साइनोवियल फ्लूइड कम होने की वजह से। कम हो जाने की वजह से ये दोनों, घुटना में टिबिया, फिबुला और फेमर, तीनों बोन है, फेमर, टिबिया, फिबुला, तो ये रगड़ा रगड़ा के एक दूसरे पर फिर घर्षण होने से उनका एंड जो है रब हो जाता है, घर्षण होती है, उससे दर्द होता है, चला नहीं पार लगेगा। स्पेशल काइंड ऑफ फ्लूइड है, यही है साइनोवियल कैविटी में प्रेजेंट। तो साइनोवियल जॉइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस ऑफ द बोन्स। तो इस अरेंजमेंट की वजह से ये इस ज्वाइंट पर एक बहुत ही ज्यादा फ्रीडम हो सकता है, संभव हो पाया। ठीक है ना, साइनोवियल ज्वाइंट होने की वजह से ही, क्योंकि कार्टिलेजिनस फाइब्रस में हो नहीं सकता, यहाँ घर्षण होगी, इतना मूवमेंट संभव नहीं है। इन्हीं ज्वाइंट्स की मदद से आप दौड़ते हो, कूदते हो, फांगते हो, कितना रिगरस वर्क है वो। ओके, बड़ा बड़ा काम करते हो। सो लोकोमोशन करते हो, आपको हेल्प करता है, अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। तो साइनोवियल जॉइंट्स कई तरह के हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये सब साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल इज, दिया है आपके बुक में, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। ह्यूमरस एंड, सी, कैन यू सी हियर, दिस joint, this is pectoral girdle and femur, and this joint, pelvic girdle and humerus. Both of these joints are ball and socket joint. ये हो गया ball and socket joint नंबर वन। ओके, यहाँ पर देखिए अरेंजमेंट, एक डिप्रेशन है गर्डल में, चाहे वो पेल्विक गर्डल हो या पेक्टोरल गर्डल हो। पेक्टोरल गर्डल में भी डिप्रेशन है, ये समझ लो पेक्टोरल गर्डल है, और ये हो गया ह्यूमरस। ह्यूमरस का हेड इज फंक्शनिंग एज बॉल, एंड पेक्टोरल गर्डल में अभी बताया आपको ग्लेनोइड कैविटी है, वो हो गया सॉकेट। ग्लेनोइड कैविटी बना ना एक्रोमियन से के नीचे, वो हो गया सॉकेट। ह्यूमरस का हेड बॉल और ग्लेनोइड कैविटी सॉकेट। तो दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब इसमें कोई चीज है तो वो ऐसे ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे ऐसे भी घूम सकता है। ठीक है ना, बॉल सॉकेट होने की वजह से, इसलिए हाँ हाथ ऐसे भी नचा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बॉल सॉकेट ज्वाइंट है। उसी तरह पैर में भी एसिटाबुलम है, उस कैविटी का नाम, सॉकेट का नाम,
और हेड ऑफ द फेमर इज द बॉल. ओके, so this also is ball and socket joint. Femur and pelvic girdle. ठीक है ना, ये सब भी लिखते जाओगे. बॉल सॉकेट है तो यहाँ पर बॉल हो गया, ह्यूमरस हेड, सॉकेट हो गया, ग्लेनोइड कैविटी. बॉल हो गया हेड ऑफ द फीमर, सॉकेट हो गया एसिटाबुलम. ये क्लियर? नाउ कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ द साइनोवियल ज्वाइंट. क्या नाम है? बोलो. हिंज ज्वाइंट. हिंज ज्वाइंट, ये भी साइनोवियल ज्वाइंट है. हिंज ज्वाइंट आपको दिख रहा है, दिस वन इज हिंज ज्वाइंट. हिंज ज्वाइंट लिखा, ये. तो हिंज ज्वाइंट के दो एग्जाम्पल, एल्बो और नी दोनों. यहाँ ज्वाइंट है और एल्बो में भी हिंज ज्वाइंट. पिक्चर पे देखिए, हिंज से कप जैसा है और ऊपर में आर्टिकुलेटिंग सरफेस इज लाइक दिस. इसमें हिंज के अकॉर्डिंग, जैसे ये कप हो गया और ये ऐसे हो, तो सिर्फ ऐसे मूवमेंट हो सकता. यहाँ पर मूवमेंट ऐसे ऐसे हो सकता है. वो चीज ऐसे हो और बीच में ऐसे, मूवमेंट सिर्फ ऐसे ऐसे हो सकता है. तो हाथ में आप सिर्फ ऐसे मूवमेंट कर सकते हो, ऐसे नहीं ले जा सकते हो, या पीछे नहीं ले जा सकते. इसको घुमा के हम पूरा पीछे नहीं कर सकते, तो टूट जाएगा. इसको हम एक लिमिटेड फ्रीडम, यहाँ तक, ये यहाँ तक जाएगा फिर रुक जाएगा, और पीछे नहीं हम हट सकते. ठीक है ना, और पीछे ले जाएंगे तो यहाँ से कवर जाएगा. ज्वाइंट एग्जाम्पल इज नी एंड एल्बो. नी में एक एडिशनल बोन है जिसका नाम पटेला है. द थर्ड इज पाइवोट ज्वाइंट. बताया है आपको, पाइवोट ज्वाइंट. सी थर्ड वन. और पाइवोट ज्वाइंट की वजह से हम लोग लाइक दिस वी कैन डू. ऊपर वाला सिर्फ घूम रहा है, नीचे वाला नहीं. ऊपर को पकड़ के आप नीचे नहीं घुमा सकते. मान लो कि मुंडी फिक्स कर दे, लटका देंगे, कहे कि नीचे बॉडी हिलाओ, इस ज्वाइंट के ऊपर अलाउ नहीं, नहीं हिला सकते. ठीक है ना, खड़े हैं मुंडी हिला सकते. पाइवोट ज्वाइंट बिटवीन द एटलस एंड द एक्सिस, C1 एंड C2 के बीच में. पाइवोट ज्वाइंट C1 एंड C2 वर्टिब्री. नाम है एटलस एंड एक्सिस. ये वर्टिब्री है.
सर्वाइकल वर्टिब्री है इसलिए सी। फोर्थ, ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट। और एक कौन सा नाम है? सैडल जॉइंट। एक दो तीन। फर्स्ट हियर हो गया, सेकेंड दिस, थर्ड दिस, तीन पिक्चर और बचा है। ज्वाइंट है हमारे पास दो, इसमें नाम अलग अलग है। सैडल ज्वाइंट तो ये हो गया पांचवा, सैडल ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है आपका कार्पल्स के बीच में, आपस में, कार्पल्स के आपस में होता है। हाँ, वो आठों का आपस में, उन आठों का मेटा कार्पल्स और रेडियो अल्ना के साथ नहीं, उन आठों का आपस में, और सातों टार्सल्स का आपस में, ये है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। देखो यहाँ लिखा है बिटवीन ट्रेपीजियम कार्पल बोन एंड द फर्स्ट मेटाकार्पल, सो दिस इज नॉट प्लेन ज्वाइंट बिटवीन टार्सल्स जोन। हाँ ये देखो, प्लेन ज्वाइंट कह रहा है, यही ग्लाइडिंग ज्वाइंट हो गया। एंड कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट बिटवीन रेडियस एंड कार्पल बोन्स, ये दूसरा टाइप का ज्वाइंट। सी दिस इज द ग्लाइडिंग ज्वाइंट, फोर्थ वन। इसका दूसरा नाम है प्लेन ज्वाइंट, यहाँ प्लेन लिखा हुआ है। आपके बुक में लिखा हुआ है क्या? ग्लाइडिंग ज्वाइंट इज बिटवीन द कार्पल्स, बिटवीन कार्पल्स एंड टार्सल्स, बिटवीन कार्पल्स एंड बिटवीन टार्सल्स। एंड कार्पल टार्सल के बीच में, कार्पल कार्पल का आपस में, टार्सल टार्सल का आपस में। ठीक है, अब देखिए सैडल ज्वाइंट। अब कार्पल का मेटा कार्पल्स के साथ, टार्सल का मेटा टार्सल के साथ, ठीक है ना, दोनों साइड। कार्पल्स का रेडियो अल्ना के साथ, टार्सल्स का टिबिया फिबुला के साथ। तो ये दोनों अलग अलग तरह के ज्वाइंट। तो पहले देखिए सैडल ज्वाइंट जो है वह कहलाता है कार्पल्स का मेटा कार्पल के साथ। सैडल ज्वाइंट इज बिटवीन, हम्म, हाँ 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 आते हैं। सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट आपके बुक में लिखा है बिटवीन कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ थंब। तो कार्पल हो गया, उसका मेटा कार्पल, थंब का मेटा कार्पल, सैडल ज्वाइंट। बाकी फिंगर का मेटा कार्पल्स के साथ ये नहीं अभी चर्चा किया है। और इस फिगर में दिया हुआ है बिटवीन ट्रेपीजियम मेटा, ट्रेपीजियम कार्पल बोन एंड द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। यस, थंब का मेटाकार्पल के साथ। तो सैडल ज्वाइंट इज बिटवीन
trapezium, carpal bone, and the first metacarpal bone. झाड़ू एने साहब उधर है झाड़ू, नारियल के है, तो नारियल वाला झाड़ू लेके ऐसे भी जा सकते हैं आप, या बाहर से भी जा सकते हो, जो आपको लेके बाहर अंगना कर दीजिए। सैडल ज्वाइंट समझ गई, यहाँ पर इसी ज्वाइंट की वजह से आप लिखते हो, चित्र बनाते हो, कोई चीज पकड़ लेते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट ज्वाइंट, अगर ये ज्वाइंट काम नहीं करे तो बेकार हो जाओगे। ठीक है ना, उठाते हो, कोई चीज होल्ड करते हो, मुक्का मारते हो, किसी को पकड़ते हो, ये ज्वाइंट है सैडल ज्वाइंट। देखिए यहाँ पर अरेंजमेंट कैसा है, इस तरह से ये ज्वाइंट है। सिक्स्थ वन, प्लेन ज्वाइंट। प्लेन ज्वाइंट वही हो गया, ग्लाइडिंग ज्वाइंट ही प्लेन ज्वाइंट। कॉन्डी सीड ज्वाइंट, एक ज्वाइंट और है, कॉन्डी सीड ज्वाइंट। This joint is between radius and carpal bones of the wrist. Radius का कार्पल के साथ। यहाँ पर कॉन्डिसिक ज्वाइंट है ना, इसीलिए हम लोग ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ओके, दो तीन, ये पांचवा था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी disorders of muscular and skeletal system.